that I can finish it today itself, इसलिए मैं आज एक वन शॉट करने वाली हूँ इसका. ठीक है, काफ़ी सिंपल है पर हम जल्दी से पढ़ लेते हैं. ठीक है. Now, equilibrium is the state of rest or balance due to equal action of opposing forces. एक तरीके से एक state of rest या balance equilibrium होता है, एक रुकी हुई state जहाँ पे कुछ भी change नहीं हो रहा है. ठीक है. तो first is chemical equilibrium. It's the state at which there is no further change in concentration of reactants and products because rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. जब reactants और products की concentration में कोई भी फर्दर चेंज नहीं होता है, मतलब वो एक तरीके से स्टैटिक हो जाता है बिकॉज फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल है. तो जितने रिएक्टेंट्स हैं उतने ही प्रोडक्ट्स हैं. एक ऐसी स्टेट होती है ना, जैसे अगर तुम केक बेक कर रहे हो तो उसमें एक ऐसी स्टेट आएगी जहाँ पे जितना तुम्हारा अनबेक्ड मिक्सचर है उतना ही तुम्हारा बेक्ड केक है ना. तो यही बात है. एग्जाम्पल N2 गैशियस प्लस 3H2 गैशियस गिव्स 2NH3 है ना. अगर तुम नाइट्रोजन गैस लोगे और हाइड्रोजन गैस लोगे एंड इफ़ यू कंबाइन दैम you get ammonia 2NH3. okay, ये balanced equation, but this is what you get. So if there is this arrow between them, it means कि ये equilibrium में है. concentration of reactants is equal to concentration of products. मतलब जितने reactants बन रहे हैं उतने ही products बन रहे हैं, और जितने reactants से products बन रहे हैं उतने ही products से reactants बन रहे हैं. So it's quite an interesting thing, है ना. Then you have physical equilibrium in which the physical state does not change with time, or equilibrium in physical process where no chemical reaction is involved. ठीक है. यहाँ पे कोई भी chemical state नहीं change हो रही है, जैसे solid to liquid, जैसे ice and water के बीच में. ice जो है वो भी H2O है, water भी H2O है, दोनों H2O है. H2O is changing to H2O. Basically solid H2O is changing to liquid H2O and liquid H2O is changing to solid H2O. तो basically दोनों ही equilibrium में हैं and they are literally changing from one form to another. ठीक है. और जितनी आइस है उतना ही वाटर है. लिक्विड टू गैस में क्या होता है, बिटवीन वाटर एंड वेपर. ठीक है. जितना वाटर से वेपर बन रहा है उतना वेपर से वाटर बन रहा है. दोनों H2O हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है. सॉलिड टू गैस एग्जाम्पल कैम्फर एंड आयोडीन देते हैं बिकॉज यूजली देखो एक ट्रिपल पॉइंट होता है जब आइस जो है एक जब तुम बोल सकते हो कि आइस इज अ सब्लाइम सब्सटेंस, और ना उस पॉइंट पे जो आइस भी स्टीम में चेंज होती है. आई थिंक मोस्ट सब्सटेंसेस हैव ट्रिपल पॉइंट्स. तो ट्रिपल पॉइंट्स में क्या होता है कि तुम्हारी जो चीज़ें हैं वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती हैं. ठीक है. जैसे आइस जो है तब सॉलिड लिक्विड एंड वेपर तीनों की तरह को एग्जिस्ट करती है. ठीक है. और जब कभी कभी क्या होता है कि स्नो से डायरेक्टली वाटर में चेंज होती है, जैसे जो कोल्ड रीजन्स होते हैं ना, स्नो कैप्ड रीजन, वहाँ पे भी ये होता है. So do all substances have a triple point? Triple point is a very interesting phenomena where all the substances have the same, मतलब वो तीनों states they exist in all the three states. Okay, the only state may exist in equilibrium, right? There's a very interesting phenomenon, triple point. Okay, a triple point is the temperature and pressure where the substance is simultaneously solid, liquid and gases. Like helium, it does not have a triple point. ठीक है. तो there are certain substances which don't have a triple point जहाँ पे वो liquid, gas and solid में exist कर रहे हैं. water करता है but सारी substances नहीं करती हैं. ठीक है. plus triple point practically you might attain it in a laboratory or whatever, but उसके लिए तुम्हें लैब चाहिए, वो नॉर्मल वर्ल्ड में यूजली नहीं अटेन कर सकते. एंड सॉलिड टू वेपर डायरेक्टली चेंजिंग इज़ नॉट अ वेरी कॉमन थिंग, है ना. तो I do not think ice changes from solid to gas that easily. Okay. Yes. Now, so we usually only say camphor and iodine, but I'll write my question in the last page.
Then you have dynamic equilibrium. It's the state of a given system in which the reversible reaction taking place and it stops changing the ratio of reactants and products, but there is a movement of substances between reactants and products. ठीक है, क्या होता है कि reactants and products में movement चल रहा है, ठीक है, reactants से products बन रहे हैं, products से reactants बन रहे हैं, chemical reaction is going on, but they are basically not changing in amount. ठीक है, दोनों का amount same. Example, ice and water are example of dynamic equilibrium, as constantly ice is changing to water and water is changing to ice constantly, but the ratio doesn't change. In chemistry, all examples are of dynamic equilibrium. ठीक है, केमिस्ट्री में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितना भी तुम पढ़ोगे, वो सारा कुछ डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए है. ठीक है, फिर आता है तुम्हारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जिसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, बहुत यूजलेस है. occurs when there exists no movement between reactants and products corresponding to the chemical reaction. ठीक है, जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है वो तब होता है जब कि कोई मूवमेंट नहीं होता है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. मोस्टली स्टैटिक इक्विलिब्रियम के जो एग्जांपल्स होते हैं उसमें तुम्हारे रिवर्सिबल प्रोसेसेस ही आते हैं, जहाँ पे जो है केमिकल रिएक्शन चल नहीं रहा होता है, उसमें कंप्लीट हो गया होता है, तो वो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स में वो इक्विलिब्रियम पे होते हैं. जैसे डायमंड चेंजिंग टू ग्रेफाइट इज़ इरिवर्सिबल, और ग्रेफाइट एनीथिंग कोल चेंजिंग टू कार्बन, डायमंड इज़ इरिवर्सिबल. डायमंड से तुम वापस कोल नहीं बना सकते. जिस कोल से, जो मामूली कोल जो सड़क पे पड़ा रहता है, उससे एक बार तुमने एक डायमंड बना लिया बहुत ज़्यादा हाइड्रोलिक प्रेस से या कुछ भी प्रेशर से, तो यू कैन नॉट मेक कोल आउट ऑफ डायमंड अगेन. उस डायमंड को तुम रिवर्स करके तुम बोलो कि मैं सब कोल बना लेता हूँ, ये तुम नहीं कर सकते हो. ठीक है, एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन में सिर्फ स्टार्टिंग एंड एंड में होता है इक्विलिब्रियम. दिस आई विल हेल्प यू विथ. इसमें तुमको कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि ये थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोकेमिस्ट्री नहीं है. यहाँ रिएक्शंस वगैरह का बात नहीं होता है. यहाँ पे किसका बात होता है? मैटर का, स्पेशली गैस का प्रेशर वॉल्यूम ऐसे ऊपर नीचे हुआ, अलग अलग तरह का प्रोसेस है, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोपोरिक, ये सब. तो स्टेट्स मतलब बेसिकली मैटर का बात हो रहा है. यहाँ पे मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर रिएक्शंस का बात नहीं हो रहा है, वो थर्मोकेमिस्ट्री में होता है. ये थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट में एक तो यूनिट देखी होंगे ना, थर्मोकेमिस्ट्री, उसके अंदर रिएक्शंस का बात होता है. तो जो हम केमिकल इक्विलिब्रियम में वो सब पढ़े थे ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऐसे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, स्टैटिक डायनामिक, वो मॉलिक्यूलर लेवल का नॉलेज है, वो यहाँ वैसा का वैसा अप्लाई नहीं होगा. यहाँ पे गैसेस एज अ होल बात हो रहा है, यहाँ पे मैटर को लिया जा रहा है. तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है कि मतलब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट अब उतना ही फिक्स है, कन्वर्ट होता जा रहा है, या फिर प्रोडक्ट कंप्लीटली रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया. इक्विलिब्रियम यहाँ वैसे नहीं है. यहाँ का इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि मान लो एक एग्जांपल से समझाते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसे इक्विलिब्रियम में रहता है इनिशियल और फाइनल स्टेट में. मान लो एक तो कंटेनर में गैस है, ठीक है, और उसके ऊपर एक लिड लगाया हुआ है. अब लिड इंटैक्ट क्यों है? क्योंकि अंदर का जो प्रेशर का गैस है, गैस का प्रेशर है, और बाहर का जो एक्सटर्नल प्रेशर है एटमॉस्फेयर की तरफ से, वो बराबर है. ठीक है, अभी इक्विलिब्रियम में है, इसलिए लिड वैसा का वैसा. मान लो बाहर से प्रेशर ज़्यादा होता तो लिड अंदर धंस जाता है ना, गैस को कंप्रेस कर देता. गैस का इंटरनल प्रेशर ज़्यादा होता तो लिड को उड़ा देता है ना. यही होता है ना प्रेशर कुकर में. प्रेशर कुकर में मान लो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, नुकसान छोड़ फट सकता है ना. तो वही चीज़ है, मान लो वैसे समझ लो. ठीक है, अब मान लो हम लोग बाहर से पी एक्सटर्नल बढ़ा देते हैं. पी एक्सटर्नल हम लोग कुछ रख देते हैं लिड के ऊपर में, भारी सा 5 किलो का कुछ भी रख देते हैं. तो अब वो धीरे 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 लिड नीचे धसता जाएगा, क्योंकि हम लोग ऊपर एक वेट रख दिए हैं. वो वेट और पी एक्सटर्नल को बढ़ा दिया और वो नीचे उसको धसाता जा रहा है. तो एक पॉइंट पे आके तो रुकेगा ना, लाइक काफ़ी गैस को कंप्रेस कर चुका होगा, लिड काफ़ी नीचे जा चुका होगा, बट सम पॉइंट तो वो जाके रुकेगा ना. तो जब वो रुक जाएगा, इसका मतलब क्या है कि अब जो बाहर का पी एक्सटर्नल है वो वेट का प्लस एटमॉस्फेयर का, अब गैस का जो इंटरनल प्रेशर है, जो अंदर में गैस है, इतना कंप्रेस हो चुका है कि अब उसका प्रेशर बढ़ चुका. तो अब वो बैलेंस कर रहा है बाहर का प्रेशर को, गैस अब बैलेंस कर रहा है खुद का प्रेशर से. तो अब वो रुक चुका. तो अब इक्विलिब्रियम है. स्टार्टिंग में इक्विलिब्रियम था ना, बाहर का प्रेशर के संग गैस का प्रेशर का इक्विलिब्रियम. वैसे अब इक्विलिब्रियम, लेकिन प्रोसेस के टाइम पे इक्विलिब्रियम थोड़ी था. वो तो मतलब नीचे आता जा रहा था लिड वेट की वजह से, क्योंकि प्रेशर बढ़ चुका था. सो दैट्स व्हाई प्रोसेस के टाइम पे इक्विलिब्रियम नहीं होता है. इन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ही रिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम होता है. एंड वो स्टैटिक डायनामिक वाला कंफ्यूजन मतलब वो समझ गए? इफ़ यू हैव अ lid, you have this, and then you have a piston, and then you have this. ठीक है, when you compress it during
balance happens. These are handwritten notes. If you want me to send them to you, you can just ask. Okay. Now you have ionic equilibrium. It is the equilibrium during ionization process. Here the ionic substance dissociates into its concentration in polar solvents. So here the ionic substance dissociates into its ions in polar solvents, and the ions formed are always in equilibrium with the undissociated solute in the solution. आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि ड्यूरिंग आयनाइजेशन प्रोसेस जितने आयंस हैं, ठीक है, वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहते हैं विद द अनडिसोसिएटेड सल्यूट. मतलब आयंस आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विद द अनडिसोसिएटेड सल्यूट. मतलब कि यहाँ पे देखो CH3COOH है, ये CHCO- प्लस H+ में ब्रेक डाउन हो गया है. तो जितना CH3COOH है जो कि अनडिसोसिएटेड सल्यूट है, उतने ही तुम्हारे डिसोसिएटेड आयंस हैं. ठीक है. अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि जो स्ट्रॉन्ग आयनाइजेशन वाले सब्सटेंसेस होती हैं, वो एक तरीके से जब वो डिसोसिएशन का स्टार्ट होता है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाती है. मतलब वो पूरा का पूरा वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिसोसिएट हो जाती है. बिल्कुल भी उससे वापस रिएक्टेंट नहीं बनता. मतलब जब तुम्हारा वीक होता है ना, वीक आयनाइजेशन वाली कोई सब्सटेंस होती है, तो क्या होता है कि जितना वो डिसोसिएट होती है उतने ही वो जो है जॉइन होकर वापस उसको बना देते हैं. रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता है, उसमें सिर्फ प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम मिक्सचर. द मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन द इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम मिक्सचर. अगर तुम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को इक्विलिब्रियम में मिक्स करते हो, जैसे वो जो मिक्सचर रहता है जिसमें तुम्हारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स सेम है, क्वांटिटी में, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, दैट इज़ योर इक्विलिब्रियम मिक्सचर. Then you have solid plus liquid equilibrium. Now put ice cubes plus water at 0 degrees Celsius and normal atmospheric pressure in an insulated thermos flask. No heat exchange will happen. जैसे तुम आइस क्यूब और पानी को 0 डिग्री सेल्सियस एंड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एक इंसुलेटेड थर्मस में डालोगे तो कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगा. ठीक है. तो उसमें क्या होता है, hence mass of ice and water are constant. It is still a dynamic process. At equilibrium, rate of ice melting is reversible, is changing to rate of water freezing. मतलब जितनी आइस मेल्ट हो रही है उतना पानी फ्रीज़ हो रहा है. जितनी तुम्हारी आइस मेल्ट होती है उतना तुम्हारा पानी फ्रीज़ होता है. फिर सेम रहता है, तो है ना, रेट्स दोनों के सेम. Temperature at which solids and liquids form of a pure substance are in equilibrium at the atmospheric pressure is normal freezing point or melting point. ठीक है. ऐसा टेम्परेचर जिस पे सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है, कंपाउंड या फिर एक एलिमेंट, आर इन इक्विलिब्रियम एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट. बिकॉज जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसमें जितना पानी फ्रीज़ होता है उतना ही पानी अनफ्रीज़ होता है, और मेल्टिंग पॉइंट पे भी जितना पानी मेल्ट होता है, जितनी आइस मेल्ट होती है उतना ही वाटर वापस से फ्रीज़ हो जाता है. ठीक है. So melting point and freezing point have got a good definition here. The system here is in dynamic equilibrium because both opposing processes occur simultaneously. ठीक है. दोनों एक साथ हो रहे हैं, plus both the processes occur at the same rate, hence amount of ice and water remains constant. Since both of the processes are occurring at the same rate, मतलब जितना rate of ice melting है उतना ही rate of water freezing है, इसलिए since both are happening at same rate, the amount of ice and water is constant. Then you have liquid vapor equilibrium. So in liquid water equilibrium, you can take a closed vessel and connect it to a manometer or U-tube for measuring pressure. ठीक है. This is done only to try. पहले जो है हम एक एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे हमने एक U-tube से कनेक्ट कर दिया है, और हमने एक एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड रख दिया जस्ट टू ड्राई द कंटेनर. ठीक है. पहले जितना भी वाटर वेपर है, जितना भी उसमें पानी का कंटेंट है, ड्रॉप्स है, कुछ भी है, उसको निकाल लिया. फिर क्या किया, हमने एक डिश ऑफ वाटर रख दिया. ठीक है. एक पानी पेट्री डिश में पानी रख दिया.
ठीक है. Now first of all, vessel is evacuated using anhydrous calcium chloride, hence level of mercury in both the columns is same. यहाँ पे if you see the level of mercury is same because here there is nothing inside. जो था पानी उसको हमने evaporate कर दिया using anhydrous calcium chloride. Now the level of mercury is same. After keeping H2O in the system, level of mercury in left limb of the manometer begins to fall and in the right limb it begins to rise. ठीक है. जब तुमने H2 रखा तो जो लेफ़्ट लिम्ब में जो वो है लेवल ऑफ मर्क्यूरी जो लेफ़्ट लिम्ब में है दैट स्टार्ट्स टू फॉल एंड द इन द राइट लिम्ब इट राइजेस. आफ्टर सम टाइम लेवल बिकम्स कांस्टेंट. तो पहले क्या है कि यहाँ पे जो है प्रेशर यहाँ पे जो है इट स्टार्ट्स टू फॉल है ना, एंड हियर इट स्टार्ट्स टू राइज. आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स इक्वल. जितना यहाँ पे फॉल हुआ है उतना यहाँ पे राइज हुआ है. ठीक है. ओके. सो दिस वाज माय क्वेश्चन अ लिटिल व्हाइल अगो कि अगर एक जगह पे नैनोमीटर में अगर एक जगह गिर रहा है तो दूसरी जगह क्या हो रहा है. तो लेट मी टेल यू. Wait, I'll tell you. Wait, I'll get back to you about this. Wait, I'll tell you this.